Essentialism, the disciplined pursuit of less. آج ہم علم کی باتیں میں اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 ڈسکس کر رہے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کی سپیڈ تیز ہو جائے، آپ 2 گنا 3 گنا یا 4 گنا زیادہ کام کریں، دیے گئے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ رائٹر کہتا ہے کہ کلیریفائی یور پریورٹیز، جو لوگ اپنی پریورٹیز کو کلیئر رکھتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی ترجیحات بڑی واضح ہوتی ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ترجیحات کو سامنے لکھ کر چسپاں کر لیتے ہیں، پیش کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اپنے ٹارگٹ لکھتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں اور وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات آپ نے سیکھی کہ کلیریفائی یور پریورٹیز، یعنی اپنی پریورٹیز کو کلیئر کریں یا اپنے ٹارگٹس کو کلیئر کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جی نمبر 2، رائٹر نے کہا ہے کہ اڈاپٹ یس اور نو رول۔ اگر کام کی سپیڈ کو تیز کرنا ہے تو یس اور نو رول کو اپنانا پڑے گا، یعنی آپ کو اس کا ماسٹر ہونا پڑے گا کہ کس بندے کو ہاں کہنا ہے اور کس کو نہ کہنا ہے۔ اس کے لیے تیسری بار رائٹر نے بڑی کمال کہی ہے۔ رائٹر نے کہا ہے کہ لرن ٹو سے نو گریسفلی، یعنی شائستگی کے ساتھ نہ کرنا سیکھیں۔ ہمارا مزاج پتہ کیا ہے؟ ہم نا بہت ہی بد لحاظ، بے مروت، بے ہدایتی قسم کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بڑے بے تکے انداز میں نہ کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھو اگر آپ کو نہ کرنی ہے تو پلیز آپ بڑے آرام سے نہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا کلائنٹ ہے، آپ کا ساتھی ہے، کوئی دوست ہے جو آپ سے کام کروانا چاہ رہا ہے، کام لینا چاہ رہا ہے، آپ بیزی ہیں، نہیں ہو پا رہے، تو آپ ان کو بڑے آرام سے کہیں دیکھیں پلیز آپ ہمارے بڑے اچھے دوست یا بھائی ہیں، آپ ہمارے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، دیکھیں میرے پاس یقین کریں ٹائم نہیں ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں لازمی کرتا۔ دیکھیں میں آپ سے اگر غلط بیانی کر کے مس کمٹمنٹ کرتا چلا جاؤں تو یہ بری بات ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اس لیے پلیز خدا را یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یہ کام میرے سے ہی کروانا ہے، میرے سے ہی لینا ہے، تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اٹ از اپ ٹو یو، ٹھیک؟ تو یعنی شائستگی سے آپ اس کو نہ کرنا سیکھیں، یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک؟ تو آپ کو پتہ کہ ڈیل کارنیگی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کامیاب لوگ ہنستے ہوئے نہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک؟ تو بھئی کامیاب بنے، آپ ہنستے ہوئے نہ کہیں، بڑے خوش ہو کے، بڑے آرام سے، کسی کو آپ دل آزاری نہ کریں، ناراض نہ کریں، اس کو جو اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بھئی ہر بندے کو اپنے کام کو ترجیح دینا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ اصرار کر رہا تو کرتا جائے، آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں، اپنے سسٹم کے مطابق چلائیں ہر بندے کو، ٹھیک؟ آگے چلیں۔ کہتا جی اوائڈ دا ٹریپ آف سنک کاسٹ، یہ ضروری بات ہے۔ یہ سنک کاسٹ ہم اس کو عام لفظوں میں سمجھتے ہیں، سنک ہے سنک سے یعنی ڈوب جانا، ٹھیک ہے؟ تو سنک کاسٹ یعنی ڈوبی ہوئی رقم۔ ہمارے پاس نا زندگی میں کئی مرتبہ ایسے موقع آنے ہیں اور آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بڑے سالوں سے یہ کام کرتا آیا ہوں، اب نہیں کام چل رہا یار، اب کیا کروں، سالوں کی محنت کو ضائع کر دوں؟ دوست احباب، بہن بھائی، رشتہ دار جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یار اب کیا کروں میں، یار سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو پتا کہ میں نے اس سے بڑا پیسہ کمایا ہے اسی کاروبار سے، اب نہیں چل رہا تو چل ہی جائے گا نا یار، ٹھیک ہے؟ لاکھوں روپیہ پھنسایا ہوا ہے، میں اس کو لاکھوں روپیہ ضائع کر دوں اپنا؟ تو یہ والا رائٹر کہتا جی کر دیں۔ کہتا ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر اپنے کام کی سپیڈ کو بڑھانا ہے، تو جو چیز آپ کی اگر پھنس گئی ہے اور رقم ڈوبی ہوئی ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں، ڈوب گئی ہے وہ، اب اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور رقم مت ڈبائیں، اور ٹائم مت ضائع کریں، اور اس کے اوپر مت کھپیں۔ جو ہو گیا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں ہوا بھائی نہیں ہو سکتا، بس دیٹس اٹ، ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس سے مجھے یاد آگے کو میں جی ایم صاحب کے سامنے ایک مرتبہ پھنس گیا، وہ کرنل صاحب نے بڑی عجیب بات کی،
मेरा छोटा सा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कहीं पे फंसा ही रह गया ना। तो मैं बड़े संजीदा कहा, कहता इधर आओ जी, सबको बुलाया हुआ था, मुझे बुला, कहते आप ये क्या कर रहे हो, आप तोप से मक्खी मार रहे हो, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट था इतना छोटा, हो नहीं रहा था, हम बड़े बड़े प्रायोरिटी दिए थे, हम बड़े बड़े काम किए जा रहे थे जरूरी जो थे, वो फंस गया था, हो नहीं रहा था, क्या करें। तो मुझे जुमला कर्नल साहब का याद आ गया, वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, तोप से मक्खी मार रहे हो, ठीक है। एमडी ने, ब्रिगेडियर साहब ने बुला लिया, जरा आओ नहीं सामने आओ जरा, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर कोई काम खराब हो गया है या रुक गया है और या नहीं कर सकते हो आप, अपनी कमिटमेंट की हुई है, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया लेकिन आपसे नहीं हो पाया या नहीं होगा और आपको पता है, तो प्लीज़ आप उसको अब और रकम डुबाना और टाइम डुबाना छोड़ दें, टाइम ज़ाया करना छोड़ दें, तो अब उसको आगे अपने आप को बदलें, ठीक। तीसरी अगली बात, राइटर कहता है कि एम्ब्रेस सिलेक्टिव सब्ट्रैक्शन। अब अगर आपने बदलना है तो सिलेक्टिवली बदलें, काम की स्पीड को तेज़ करना है, ठीक है। तो सिलेक्टिवली चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिनहा करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता सब्ट्रैक्ट करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता माइनस करते जाएं, ठीक है। जब आप चीज़ों को, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन कर लें, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आउट करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे करने पड़ते हैं, यकीन करो, इतने इतने जिगरी यार छोड़ने पड़ते हैं। क्या करें भाई, जो आपकी वैल्यूज़ के सामने आगे हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते ना। तो ऐसा होता है, जो आपकी वैल्यूज़ और आपकी इकदार और आपकी प्रायोरिटीज़ के सामने आड़े आ गए हैं, पर उनको छोड़ना पड़ता है, क्या करें, बंदा मजबूरी है, ठीक। तो आगे वो कहते हैं कि अगली बात आ गई, कहते अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस। ये ज़रूरी बात है, अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस। इसका क्या मतलब हुआ भला? इसका मतलब हुआ कि गैर ज़रूरी चीज़ों को हाँ कहने से पहले सोचें, अंडरस्टैंड करें। जब आप गैर ज़रूरी चीज़ को हाँ कह रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी टाइम आप किसी ज़रूरी चीज़ को ना भी कह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम तो साथियों आपके पास वही है ना जो आप लगा रहे हो। आपने एक कमिटमेंट कर लिया कि ये मैं काम करूँगा या मैं आ जाऊँगा, मैं ये मीटिंग अटेंड कर लूँगा, ये ऐसा हो जाएगा, और एक्चुअल में अब आप समझना शुरू हो गए कि यार ये काम ख़राब हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, गलत हुआ ये मेरे से, ठीक है। तो कहते हैं ज़रा गौर करना है, अंडरस्टैंड करना है कि गैर ज़रूरी हाँ किसी ज़रूरी काम के लिए ना बन जाती है, इसलिए ये ख्याल करना है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सोचना है। अगली बात है, कहता है लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। ये हम सब में कहीं ना कहीं पाई जाती है ये बात, या आपके इर्द गिर्द आपकी टीम के मेंबर्स में ये बात पाई जाती होगी। हमें आदत है, हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी उस्तादियाँ, अपनी कारीगरियाँ और अपने आप की जो है परफेक्शनिज्म के चक्रों में पड़े रहते हैं। मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, शायद मेरा ख्याल है। देखिए मेरा भांजा वो बहुत प्यारा बच्चा, बहुत कमाल है, ठीक है, जवान हो गया माशाल्लाह। तो मैंने उसे कहा, उसे अक्सर कहते हैं ना बाइक का उसको शौक है, कहते हैं यार ये फहद ये पकड़ो बेटा, ये पैसे पकड़ो और बाजार से ना भाग के जो मेरा बच्चा बाइक निकालो, जो ये चीज़ लेके आओ। अच्छा फर्मा बरदार है, उसने बात मान लेनी होती है, पैसे पकड़ लिए उसने, बाइक निकाल ली और अब वो गली में खड़ा है, उसको बाइक को साफ कर रहा है। और मैंने 10-15 मिनट के बाद मैं ऐसे घूम के दोबारा आया, मैंने कहा तुम फहद अभी तक इधर काम कर रहे हो यार, अभी तुम गए नहीं हो, ले आए हो सामान? कहते नहीं सर मैं अभी तक ना वो इसको मैं बाइक साफ कर रहा था, मैंने गंदी हुई थी मैं ऐसा। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, और यार ये कोई ज़रूरी काम नहीं था, पहले आप काम कर लेते जो ज़रूरी काम है, उसके बाद ये कर लेते, ठीक है ना। और यार तुमने ज़रूरी काम मेरा रोका हुआ है, हाँ है, मैं समझ रहा था मेरा काम हो चुका होगा, तुम अभी तक इधर बैठे हुए हो यार, पता नहीं वो चीज़ वहाँ से मिलनी भी है कि नहीं मिलनी है, तुम्हें कहीं और जाना पड़ दे या किसी और बंदे को भेजना पड़ दे जो है वह बड़ी वाली मार्केट में, तो ये तो जाती है तुम। वो कह रही अच्छा सर मैं जाता हूँ, ठीक है, चूँकि मैं पढ़ाता रहा हूँ तो मुझे सर भी बोलते थे, सर मैं जाता हूँ। वो होता क्या, थोड़ी देर बाद मैं फिर घूम फिर गया तो वहीं पे लगा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा मैं क्या करूँ यार। तो ये ना आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे, घरों में भी हमारे पाए जाते हैं। तो साथियों अगर काम की स्पीड तेज करनी है तो प्रायोरिटी सेट करें, ठीक है, तो पहला पॉइंट था आज का। और जिस बंदे को लगाया है उसका उस बंदे पे भी नजर रखें कि वो काम सीधा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी टीम मेंबर पे भी नजर रखें। जो ढीला है उसको बेचारे को पीछे कर दे, यार नहीं आप इस काम के लिए नहीं बने हुए, हमने कल
परसों ये बात कही थी, ठीक है ना। आप इस काम के लिए नहीं बने हो, तो इसलिए जो बंदा जिस काम के लिए बना हुआ है उससे वही काम ले, ये ज़रूरी बात है। और लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म, ये गैर ज़रूरी चीज़ों में परफेक्शनिज्म ना ढूंढते फिरें या उसमें ना अपनी उस्तादियाँ और कारीगरियाँ लगाते फिरें। वो चीज़ों में, उन चीज़ों में उस्तादियाँ लगाएं, उन चीज़ों में परफेक्शनिज्म डालें जिन चीज़ों से आपको बेनिफिट होना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना है, ठीक है, जिसने आपकी पहचान बनना है, जिसने आपको बेहतर बनाना है, ठीक है, जिससे आप बहुत देर पर पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगली बात आ गई, आखिरी बात, वो कहते हैं क्रिएट स्पेस फॉर थिंग दैट मैटर्स। अब उन चीज़ों के लिए भी जगह बनाएं जो मैटर्स करती हैं, जो मैटर करती हैं, जो ज़रूरी हैं, ठीक है। जो गैर ज़रूरी चीज़ों को अलहदा कर दें। हाँ यार, हमने किसी वीडियो में बोला था कि इस्लाम कहता है कि गैर ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी मत करें, चाहे आपको वो मुफ्त मिल रही हों, ठीक। तो यही है, गैर ज़रूरी चीज़ों को आगे पीछे करें, उनको हटा दें, अपनी स्पेस बनाएं, जगह साफ़ रखें अपनी। वो बड़ी कमाल बात है। अगर मैं इस बात को हम कह सकते हैं ऐसे कि साथियों, अगर आपने हमारी एटॉमिक हैबिट्स और डीप वर्क वाली वीडियोस देखी हुई हैं, यकीन करें अगर आप वो देख आए हैं ना, तो ये चीज़ें तो आपके लिए हलवाई हैं, ठीक है। ये आपको आती हैं क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस हो चुके हैं। एटॉमिक हैबिट्स और डीप वर्क बहुत कमाल है, आपको वो वीडियोस लाजमी देखनी चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ को कितना टाइम देना है, यानी मेजर और माइनर में फ़र्क कैसे करना है, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी आज की इल्म की बातें, और आज की इल्म की बातें हमारी थी इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस, इस किताब के पार्ट नंबर 3 से। जी जज़ाकल्लाह जी।